السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں مبشر ہاشمی اور میں ہوں انا یوسف۔ نظر ڈالیں گے اب تک کی سٹی ہیڈ لائنز پر۔ مہنگے اور مقدار میں کم پیٹرول سے شہری چکرا گئے، سیکرٹری لیبر کا مختلف پیٹرول پمپ پر چھاپا، ناپ تول میں کمی پر میٹرو فلنگ اسٹیشن آؤٹ فال روڈ، وزیر فلنگ لوئر مال اور سابرے فلنگ اسٹیشن لاہوری گیٹ سمیت 7 نوزل سیل کر دی۔ اتوار بازاروں میں سبزی کی قیمتوں میں معمولی کمی، پھل 10 سے 15 روپے مہنگا ہو گیا۔ ایم این اے پرویز ملک نے شالامار اتوار بازار میں اشیاء کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا، جبکہ ڈی سی او کا شادمان اور جوہر ٹاؤن سستے بازاروں کا دورہ۔ شہر کی گلیاں روشن کرنے کے لیے لاہوریوں کی جیبیں چلیں گی، اسٹریٹ لائٹس کا بل بھی زندہ دلان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ٹیکس لگانے کی منظوری، شہریوں سے وصولی کا فیصلہ۔ فردوس مارکیٹ میں گھریلو ناچاکی پر شوہر نے دوسری بیوی پر تیزاب پھینک دیا، 23 سالہ راشدہ سروسز ہسپتال منتقل، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پابندی کے باوجود شہر میں ون ویلنگ جاری، مین کینال روڈ پر منچلوں کے خطرناک کرتب، ادھر موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان کوٹ لکھپت فلائی اوور سے نیچے گر گئے، ایک جاں بحق دوسرا شدید زخمی۔ نشتر کالونی میں فلنگ کے دوران یکے بعد دیگر 5 سلنڈر پھٹنے سے آتش زدگی، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، دکان مالک جھلسنے کے باوجود موقع سے فرار۔ وزیر خوراک بلال یاسین نے خیبر پاک کے علاقے میں ڈینگی آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے، جبکہ ایم پی رمضان صدیق بھٹی کی چنگیا مرصدوں میں ڈینگی آگاہی مہم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عمر تابندیان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری اور نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس تصدق حسین جیلانی کے اعزاز میں تقریب، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی شرکت۔ مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی کے ہمراہ سینئر صحافی عارف نظامی کی گھر آمد، خوش دامن کے انتقال پر فاتح خوانی، جبکہ تضاد احسن اور سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کی بھی عارف نظامی سے تعزیت۔ غالب مارکیٹ میں لاہور ڈسٹرکٹ بار کے صدر نعمان قریشی کے والد حاکم قریشی کی رسم چہلم، ججز اور وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ کالج آف فزیشن کے لیے سقراط کمیٹی کی جانب سے یورپ ڈپیٹ ایوارڈ کے لیے نامزدگی کے حوالے سے تقریب، ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور صدر پی سی ایس پی ظفر اولا کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشن کے زیر اہتمام 24ویں انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس فیملی کون 2014 کی تعارفی تقریب۔ دی ٹرسٹ اسکول عامی ٹاؤن میں سیڈ آف پیس کے زیر اہتمام انٹر فیتھ ہارمونی کے موضوع پر تقریب، مختلف اسکولوں کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لمس میں سالانہ کورٹ کیسز کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے پاکستان لاء کالج کے طلباء کے اعزاز میں استقبالیہ، معروف قانون دان پروفیسر ہمایوں احسان کی شرکت۔ رائے بند روڈ پر پی سی کیٹرنگ میں کرکٹر وہاب ریاض کی دعوت ولیمہ، نوبیاتا جوڑے کی میڈیا سے گفتگو میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ڈیفنس میں ایچ یو ایم اسٹور کی لانچنگ، ایک ہی چھت تلے جیولری، بچوں کے گارمنٹس اور دیگر ایکسیسریز میسر ہوں گی۔ ڈیفنس پبلک لائبریری میں کتب نمائش کا اہتمام، مصور جاوید اقبال کے فن پارے، کارٹونسٹ مدثر بٹ کے خاکوں میں شہریوں کی دلچسپی۔ انٹریکٹیو ریسورس سینٹر کے زیر اہتمام علی آڈیٹوریم میں 3 روزہ 12ویں انٹریکٹیو تھیٹر فیسٹیول کا آغاز، پہلے روز علی آڈیٹوریم میں 3 ڈرامے پیش کیے گئے۔ بھارتی اداکار سپر سٹار نصیر الدین شاہ کی تھیٹر گروپ کے ہمراہ واگا کے راستے لاہور آمد، نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ ہر سال پاکستان آؤں گا۔ پاکستانی گلوکاروں کا وقت واگا کے راستے بھارت روانہ، گلوکار طارق تحفظ، شبنم مجید، ندیم عباس،
कल्चर शो करेंगे। क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ का एक और बाउंसर भारतीय फिल्म इंडिया में लाहौर में जलवागर होंगे। क्राउन प्लाजा में भारतीय डायरेक्टर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहदे पर दस्तखत। गवर्नर पंजाब से वजीर खेल राना मशहूद अहमद खान की सरबराही में पंजाब यूथ फेस्टिवल के मुंतजमीन की मुलाकात। चौधरी मोहम्मद सरवर की फेस्टिवल में यूनिवर्सिटीज के तलबा की शिरकत को यकीनी बनाने की दहानी। रॉयल पाम में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मुजफ्फर महमूद ने जीत ली। रॉयल पाम के मोहम्मद रहमान दूसरे नंबर पर रहे। एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदेला ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शो प्लानट पोलो फाइनल डी सूफी की टीम ने 5 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। फाइनल में व्हाइट ट्राइब को शिकस्त। लाहौर रेस क्लब में 9 घुड़दौड़ों का इनेकाद। लेजर लॉस कप डॉन के नाम रहा। हसन तारिक रहीम की याद में मास्टर टेनिस टूर्नामेंट शुरू। इवेंट में मुल्क भर से 24 खिलाड़ियों की शिरकत। फैसल बैंक डिपार्टमेंटल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट PIA, ज़रई बैंक, UBL और सुई नॉर्दर्न गैस की टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। और फ्लैटिस होटल में ब्राइडल कचौर वीक का तीसरा रोज रूसी मलबूसात में मॉडल्स की रैंप पर वॉक। सेक्रेटरी लेबर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ ने शहर के पेट्रोल पंप पर छापे मारे। नापतोल में कमी और कंपनी सील न होने के बायस मुतादिद पेट्रोल पंप की 7 नोजल सील कर दी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ ने मजंग में वाक़े हाईवे ट्रेड्स पेट्रोल पंप, उमर पेट्रोल पंप जुबुर्जी, मेट्रोपॉलिटन फिलिंग स्टेशन, आउटफुल रोड, साबरे फिलिंग स्टेशन, लाहौरी गेट समेत मुतादिद पेट्रोल पंप्स की 34 नोजल्स चेक की। नापतोल में कमी और कंपनी सील न होने के बायस 7 नोजल्स को सील कर दिया। सेक्रेटरी लेबर ने आउटफुल रोड पर मौजूद मेट्रो फिलिंग स्टेशन और वजीर फिलिंग लोयरमाल की एक और साबरे फिलिंग स्टेशन, लाहौरी गेट की 3 नोजल सील की। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर आवाम को सब्जियों की कीमतों में किसी हद तक रिलीफ मिला तो मुनाफाखोरों ने फल महंगे करके कसर निकाल ली। वादत कॉलोनी इतवार बाजार में फलों की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा देखने में आया। वादत कॉलोनी इतवार बाजार में लोगों का गैर मामूली रश देखने में आया। वज़ीर आला की हिदायत पर पुलिस अफसरान के चेकिंग करने और इंतजामिया की हरकत में आने पर सब्जियों की कीमतों में कमी हो गई है, ताहम फलों की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा देखने में आया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA परवेज़ मलिक ने शालामार इतवार बाजार का दौरा किया और अशिया के मयार और कीमतों को चेक किया। MNA परवेज़ मलिक ने MP चौधरी शहबाज और बाबू अख्तर के हमरा शालामार इतवार बाजार का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शालामार आसिम सलीम और TMO भी मौजूद थे। परवेज़ मलिक ने सारिफिन से इतवार बाजार में किए गए इंतजाम के हवाले से दरियाफ्त किया। इस मौके पर परवेज़ मलिक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी दिलचस्पी के बायस सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। DCO डॉक्टर अहमद जावेद गाजी ने शादमान और जौहर टाउन इतवार बाजारों का दौरा किया और अशिया खुरनूश की कीमतों का जायजा लिया। DCO का कहना था कि कम तोलने और जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शादमान और जौहर टाउन मियाँ प्लाजा इतवार बाजार के दौरे के दौरान DCO डॉक्टर अहमद जावेद गाजी ने अशिया खुरनूश का मयार चेक किया और सारिफिन से कीमतों के हवाले से गुफ्तगू की। DCO का कहना था कि दुकानदारों को उनका जायज़ मुनाफा और ग्राहकों को रिलीफ मिलना चाहिए। सारिफिन को आटा मिलों के रेट पर दस्तयाब होगा। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट राय इम्तियाज़ का ताजपुरा इतवार बाजार का दौरा, शेख खुरनूश के स्टॉल का मुआयना किया, सारिफिन की शिकायत सुनी और मौके पर अहकामात जारी किए। हाल ही में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर कैंट राय इम्तियाज़ ने इतवार बाजार का दौरा किया और वहां सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया खुरनूश के स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर TMO जीज भट्टी टाउन हारिस जलील और TOR आमिर भट्ट भी उनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इतवार बाजारों में खरीदारी करने वाले लोगों से भी इंतजामात के हवाले से दरियाफ्त किया। लाहौरियों को रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स ऑन रखने के लिए भी अब टैक्स अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िले हुकूमत को स्ट्रीट लाइट टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सर्विसेज और टैक्सेशन का जायजा लेने और तजावीज़ तैयार करने के लिए सूबाई बलदियात की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को भिजवाई थी कि स्ट्रीट लाइट्स ज़िले हुकूमत के सुपुर्द की जाएँ और इसके लिए मकामी सतह पर टैक्स लगाया जाए।
वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर लोकल बॉडीज़ की सरबराही में बनने वाली कमेटी की सिफारिशात की बाकायदा मंजूरी दे दी है। फिरोजपुर रोड पर कोतलक पर फ्लाईओवर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान तेज रफ्तारी के बायस हिफाजती दीवार से टकराकर पुल से नीचे गिर गए। एक जाम बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। नसीराबाद पुलिस के मुताबिक 12 साल अरसलान अपने साथी के हमरा चुंगी अमरसदू की तरफ से आ रहा था। मोटरसाइकिल कोतलक पर फ्लाईओवर से पीको रोड की तरफ उतरते हुए हिफाजती दीवार से टकरा गई और वो पुल से नीचे गिर गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक नामालूम लड़का जाम बहक हो गया, जबकि अरसलान की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। पाबंदी के बावजूद शहर में मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैनाल रोड पर मनचले खतरनाक करतब दिखाते रहे। मनचले दिन दहाड़े टोलियों की शक्ल में पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने कैनाल रोड पर तेज तरीन ट्रैफिक के दरमियान मोटरसाइकिलों पर करतब दिखाते रहे। कुछ मोटरसाइकिलों को एक टांग पर तो कोई एक के ऊपर लेट जाता है। नौजवानों के करतब सड़क से गुजरने वाले तमाम शहरी तो देखते रहे, लेकिन शायद ट्रैफिक वार्डन्स की नज़र से ओझल रहे या वो वन व्हीलिंग को ट्रैफिक के असूलों की खिलाफ वर्जी ही नहीं समझते। मेन बुलेवार्ड रोड पर मंचले कार रेसिंग और मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग और खतरनाक करतब दिखाते रहे, जबकि पुलिस मंचलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों पर गुज़श्ता रात नौजवान मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग जबकि मोटर कार रेसर सड़कों पर रेस और ड्रिफ्टिंग करते रहे। केनाल रोड, हुसैन चौक समेत दीगर आम शाहराहों पर भी कार रेस और मोटरसाइकिल्स पर वन व्हीलिंग का सिलसिला जारी रहा। नौजवान लड़के टोलियों की सूरत में मोटरसाइकिल जुर्कानों पर मुख्तलिफ करतब और रेस लगाते दिखाई दिए। पाकिस्तानी फनकारों का वफ्द 3 रोज़ा दौरे पर भारत चला गया। वफ्द के अरकान बरास्ता वाघा बॉर्डर दिल्ली रवाना हुए। पाकिस्तानी फनकारों का वफ्द, जिनमें गुलकार तारिक तहफ़्फ़ुज़, शबनम मजीद, नदीम अब्बास और दीगर शामिल हैं, इतवार को सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली रवाना हुए। पाकिस्तानी गुलकार 3 रोज़ दिल्ली में कल्चरल शोज़ पेश करेंगे। इस मौके पर उनका कहना था कि जिस तरह भारतीय फनकार पाकिस्तान आते हैं, इसी तरह वो भी लाहौर से भारत जा रहे हैं ताकि भारत में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह एक हफ्ते के दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि फैज़ फाउंडेशन के लिए हर साल आकर लाहौर में ड्रामा पेश करता रहूँगा। फैज़ फाउंडेशन की जानिब से मुनीज़ा हाशमी ने भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह का वाघा बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। नसीरुद्दीन शाह दूसरी मरतबा अपना थिएटर ग्रुप मोटले लेकर एक हफ्ते के दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं, जहाँ वो फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर अलहम्रा हॉल में थिएटर ड्रामा वॉक इन दी वुड्स पेश करेंगे। बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट मुनीज़ा और सलमा हाशमी जिस खुलूस के साथ मुझे मदऊ करते हैं, इनके लिए और फैज़ अहमद फैज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल लाहौर आकर ड्रामा पेश करूँगा। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। CCP लाहौर चौधरी शफीक अहमद ने इख्तियारात से तजावुज़, करप्शन, फ़राइज़ में गफलत, मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर और शहरियों से बदसलूकी पर 30 पुलिस एहलकारों को मुतअद्दिद सज़ाएँ दी। उर्दरी रूम में मुख्तलिफ पुलिस अफसरान की जानिब से दी गई सज़ाओं की अपीलों और शोकाज नोटिस के जवाबात सुनते हुए CCPO ने सब इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद, सब इंस्पेक्टर इरशादुल्लाह, ट्रैफिक वार्डन खुरम शहजाद और कांस्टेबल परवेज़ इकबाल को इख्तियारात से तजावुज़, मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर, करप्शन और शहरियों से बदसलूकी पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। CCPO ने फ़राइज़ में गफलत और शहरियों से बदसलूकी, गैर हाज़िरी और मिसकंडक्ट पर 6 थानेदारों इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ीक, आरिफ सुल्तान, मुनीर अहमद और अब्दुल रज़ाक समेत 26 पुलिस एहलकारों को सालाना तरक्कियाँ रोकने, सर्विस की ज़ब्तगी, तनख्वाहों में कमी और सेंशोर की सज़ाएँ दी। फैसल टाउन में चोर डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद तारिक की गाड़ी उनके दफ्तर के सामने से चुरा कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रैकर के जरिए गाड़ी पकड़ ली। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद तारिक के मुताबिक वो किसी काम के सिलसिले में फैसल टाउन में वाक़ अपने दफ्तर में कुछ देर के लिए आए। उन्होंने गाड़ी बाहर ही पार्क कर दी और जब वो वापस घर जाने के लिए बाहर आए तो उनकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसने गाड़ी के ट्रैकर के जरिए उसकी लोकेशन ली और ब्लॉक कर दी। निश्तर कॉलोनी में LPG सिलेंडर फिलिंग के दौरान फट गया। यके बाद दीगर 5 सिलेंडर फटने से दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कमाहा रोड बैंक स्टॉप के करीब LPG के दुकान में गैस भरते हुए सिलेंडर फट गया। यके बाद दीगर 5 सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई, जिससे 2 अफराद झुलस कर मामूली जख्मी, जबकि सिलेंडर फटने के बायस करीबी दुकानों के शीशे टूट गए।
इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। आग से मुल्का इमारत को भी शदीद नुकसान हुआ और हज़ारों मालियत का कीमती सामान जल गया। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी की रिहाइशगाह पर जाकर उनकी खुशदामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर सेनेटर चौधरी शुजात हुसैन और सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ इलाही ने मोहम्मद बशारत राजा के हमरा मुमताज़ सहाफ़ी और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात आरिफ निज़ामी से उनके खुशदामन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए फ़ातिह ख़्वानी की और गमज़दा ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन और CPNE के नौमुंतखब सदर मुजीबुर रहमान शामी ने सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी से मुलाकात की। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात और सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी की DHA मेवा के रिहाइशगाह पर इतवार के रोज़ मेहमानों क़यामत का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ अहसन ने अपनी अहलिया बुशरा एतजाज़ के हमरा आरिफ निज़ामी से मुलाकात की, जबकि CPNE के नौमुंतखब सदर मुजीबुर रहमान शामी ने अपने साहबजादे उमर शामी के हमरा उनसे मुलाकात की। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बैंक के सदर नुमान कुरैशी के वालिद हाकिम कुरैशी की रस्म चेहलम गालिब मार्केट में उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई, जिसमें जजेस और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रस्म चेहलम में जस्टिस रिटायर खलीलुर रहमान, जस्टिस आतिफ महमूद, सदर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मियां इसरारुल हक, एडवोकेट ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, एडवोकेट जहांगीर जोजा, एडवोकेट तसव्वुर कुरैशी और एडवोकेट फरहाद शाह ने शिरकत की। जिन्ना अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अख्तर की वालिदा के दर्जात की बुलंदी के लिए टीपू ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में कुरान ख़्वानी का अहतमाम किया गया, जिसमें अहम शख्सियात अजीज़ व कारब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यू गार्डन टाउन में डॉक्टर सलीम अख्तर की वालिदा की रूह के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख़्वानी के मौके पर DG हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज़, एडिशनल IG ट्रैफिक कल्बे अब्बास, सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर खसरू परवेज़, प्रोफेसर अरशद चीमा, हाफिज़ एजाज, कार्डिक सर्जन डॉक्टर खालिद हमीद, जस्टिस रऊफ़ अहमद शेख, महमूद अहमद शेख, अजीज़ व क़ारिब और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाल्टन रोड पर SDO लेस्को चालान करने पर वार्डन और लेस्को अफसर के माबैन तल कलामी हो गई। दोनों फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने थाने पहुंच गए। खियाबान इकबाल चौक वाल्टन रोड पर SDO लेस्को अमजद नागरा की ट्रैफिक वार्डन से चालान करने पर तल कलामी हो गई। दोनों फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाना फैक्ट्री एरिया पहुंच गए, जहां पर ट्रैफिक वार्डन जीशान ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अमजद नागरा से जुर्माना जमा करवाए बगैर चालान वापस ले लिया। मामला रफा दफा होने पर दोनों फरीकैन थाने से रवाना हो गए। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक MNA वहीद आलम खान ने खैरा डिस्ट्रीब्यूटर चुंगी अमरसदू लिंक रोड का इफ्तिताह कर दिया। चुंगी अमरसदू खैरा डिस्ट्रीब्यूटर लिंक रोड का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और MNA वहीद आलम ने किया। इस मौके पर MPM मियां नसीर अहमद, राना खालिद कादरी, मेहर शहजाद ताज समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनसूबे की तकमील पर 41 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि अवामी मसाइल को तेज़ी से हल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने खैबर पाक के इलाके में शहरियों में डेंगू आगाही पम्फलेट तकसीम किए। खैबर पाक इस्लामपुरा में सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने शहरियों में डेंगू आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि डेंगू वायरस से निमटने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए शहरियों को घरों में सफाई के हवाले से एहतियात करना होगी। उन्होंने कहा कि डेंगू कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है और इसके मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली रमज़ान सदीक भट्टी ने चुंगी अमरसदू में डेंगू आगाही पम्फलेट तकसीम किए। चुंगी अमरसदू में हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली रमज़ान सदीक भट्टी ने शहरियों को डेंगू वायरस के हवाले से आगाही दी और एहतियाती तदाबीर बताईं, जबकि डेंगू आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि डेंगू के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है और वज़ीर आला की हदायत पर शहरियों को डेंगू वायरस से बचाव के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी यासिन सोहल ने वाल्टन रोड पर डेंगू आगाही पम्फलेट तकसीम किए। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी यासिन सोहल ने इस मौके पर कहा कि डेंगू के हवाले से शहरियों को शऊर फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शहरी सफाई को नहीं अपनाएंगे ये जंग नहीं जीती जा सकती। इस मौके पर डॉक्टर अफजल, मलिक मसूद, जुल्फ़िकार अली समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हल्का PP 160 में नौजवान क़यादत को आगे लेकर आ रहे हैं। शमसानी में तकरीब से खिताब करते हुए हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि हल्का PP 160 में रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल कर पाए गए हैं, जबकि अवामी मसाइल को हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल किया गया है ताकि हल्के के लोगों को रिलीफ मिल सके।
اس موقع پر ملک شفیق کھوکھر، ملک حبیب اللہ، اکرم ایڈوکیٹ، حاجی رشید اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ لیڈیز کو اب ایک ہی چھت تلے جیولری، چائلڈ گارمنٹس اور دیگر اشیاء میسر ہوں گی۔ ڈیفنس میں HUM اسٹور کی لانچنگ تقریب کا احوال جانتے ہیں حسن خالد کی اس رپورٹ میں۔ ڈیفنس فیز 4 میں 3 بھائیوں نے مل کر ایک ایسا سٹور لانچ کیا ہے جہاں شہریوں خصوصاً خواتین کو ایک ہی چھت تلے ان کی پسندیدہ جیولری، بچوں کے گارمنٹس، ہینڈ بیگز اور دیگر اشیاء فراہم ہوں گی۔ سٹور کا مالک عمیر اور حمزہ کا کہنا ہے کہ پہلے ہی دن لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ملا جو کہ خوش آئند ہے۔ بڑی ایٹریکٹیو چیزیں ہیں اور پرائس وائز بھی بہت اکنامیکل ہے، اور آج پہلا دن تھا، کسٹمرز کا فلو بہت اچھا رہا۔ کافی اچھا ہم لوگوں کو رسپانس مل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ اس موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے HUM سٹورز پر رکھی پروڈکٹس کے حوالے سے کہا کہ سٹور میں ایک منفرد اور سستی اشیاء رکھی گئی ہیں جنہیں مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد بھی خرید سکتے ہیں۔ اچھی پرائسز ہیں کہ بیکاز آف دیٹ کہ اس کے اندر تمام امپورٹڈ چیزیں، اس لیے اچھی مجھے بہت اچھا لگا، مجھے یہاں آ کے بڑا مزہ آیا، اچھی شاپنگ کی ہے ہم لوگوں نے یہاں۔ بہت اچھا سٹور ہے، بہت یونیک چیزیں ہیں، بہت ڈفرینٹ ہیں، سب سے ہٹ کے، اور بہت اچھی پرائس ہے، ریزنیبل ہے، زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ HUM سٹورز کی لانچنگ کے پہلے ہی روز شہری کو کافی رش دکھائی دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں اس طرح کے نئے اور منفرد برانڈز وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ کیمرہ مین شعیب صفدر کے ساتھ حسن خالد، سٹی 42۔ ڈیفنس پبلک لائبریری میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف کتابوں، پینٹنگز اور آرٹ مقابلوں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ DHZ بلاک میں واقع ڈیفنس پبلک لائبریری میں اس سال بھی مختلف کتابوں کے سٹالز لگائے گئے، جبکہ مصور جاوید اقبال کے تخلیق کردہ فن پارے اور کارٹونسٹ مدثر بٹ کے بنائے گئے مختلف خاکے نمائش میں آویزاں کیے گئے تھے۔ 2 روزہ نمائش کے آخری روز بھی نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور تصویری نمائش دیکھی۔ اس موقع پر مصور جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ انہوں نے آئل میڈیم میں اپنے فن پارے تخلیق کیے جنہیں چاقو کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن میں شامل کی جائیں گی اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب سٹی صحت۔ پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین کے زیر تمام 24ویں انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس فیملی کون 2014 کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رینجر میرج ہال میں منعقدہ تقریب میں خصوصی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے صحت خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ MNA پرویز ملک، MP چودھری شہباز، DG ہیلتھ ڈاکٹر زاہد پرویز، ڈاکٹر افتخار پروفیسر ثاقب، پروفیسر ابوبکر، ڈاکٹر طارق، محمود میاں، ڈاکٹر سعید احمد، پروفیسر ابرار اشرف اور ڈاکٹروں سمیت اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان میں یورپ ڈبیٹ ایوارڈ کے لیے نامزدگی کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ CPSP کے صدر پروفیسر ظفر اللہ چودھری کا کہنا ہے کہ ادارے کے ایوارڈ کے لیے نامزدگی فخر کی بات ہے۔ نعیم گیلانی کی رپورٹ۔ CPSP میں ہونے والی تقریب میں صدر پروفیسر ظفر اللہ چودھری، نائب صدر پروفیسر رخشندہ، پروفیسر شعیب شفیع، پروفیسر آصف بیگ، پروفیسر عامر زمان خان، ممتاز علی مروت، پروفیسر محمد ایاز، ڈاکٹر نواز رشید سمیت شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ CPSP کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ چودھری کا کہنا تھا کہ CPSP کا طب کے میدان میں اعلیٰ طبی اور تحقیقی خدمات کے اطراف میں یورپ کے بہترین سقراط ایوارڈ کے لیے نامزد ہونا ملک و قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے دیگر شہروں میں بنائے جانے والے سینٹرز رواں سال مکمل کر لیے جائیں گے۔ یہ آج کے انسٹیٹیوٹ کا یہ مقصد تھا کہ ہر سال کالج میں جو تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، جو امپرومنٹ لائی جاتی ہے، وہ کیونکہ یہ کالج فیلوز خود چلاتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اس کے پارٹنرز ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ کیا کیا کام کیا ہے اور کیا کیا اس میں اور کرنا چاہیے۔ DGIR پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ CPSP کی موجودہ کونسل زیر تربیت ڈاکٹرز کے لیے جدید مشینوں کی مدد سے ورکشاپس کا انعقاد کر رہی ہے، جس سے تدریسی عمل میں خاطر خواہ مدد مل رہی ہے۔ یورپین بزنس اسمبلی ہے جو ڈفرینٹ پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف دا ورلڈس کو دیکھتی ہے کہ بہترین پرفارمنس کن کی ہے، تو اس سال کا جو بہترین انسٹیٹیوشن ہے وہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کو قرار دیا گیا ہے۔ 17 دسمبر کو آکسفورڈ سمٹ کانفرنس میں آکسفورڈ میں یہ ایوارڈ پروفیسر ظفر اللہ چودھری صاحب ریسیو کریں گے۔
یورپ کے بہترین سقراط ایوارڈ کے لیے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز آف پاکستان نامزدگی ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں نت نئی تبدیلیوں کے باوجود پاکستانی ادارے کا انتخاب اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستانی کسی بھی شعبے میں دنیا سے کم نہیں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم گیلانی، سٹی 42۔ جیا موسیٰ شاہدرہ میں واقع اوریل پبلک ہائی اسکول میں الاحسان ویلفیئر آئی ہسپتال کے زیر تمام فری آئی کیمپ لگایا گیا۔ اوریل پبلک اسکول میں لگائے جانے والے آئی کیمپ کی سربراہی الاحسان ہسپتال کی جانب سے اکرام خان نے کی۔ شہر کی معروف ڈاکٹرز نے لوگوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ آئی کیمپ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا اور ادویات بھی مفت دی گئیں۔ کیمپ کے بانی کا کہنا تھا کہ خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے صوبائی وزیر تعلیم اور کھیل رانا مشہود احمد خان کی سربراہی میں پنجاب یوتھ فیسٹیول کے منتظمین نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے یقین دلایا کہ آئندہ منعقد ہونے والے یوتھ فیسٹیول میں پنجاب یونیورسٹی کے طلباء بھرپور شرکت کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر ڈی جی اسپورٹس پنجاب عثمان انور، رکن صوبائی اسمبلی تہیا نور، ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ایم ڈی ٹورزم حبیب گیلانی اور جی ایم ڈی ٹی سی پی تنویر جبار نے شرکت کی۔ دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام نیلا گنبد چوک سے مسجد شہداء تک امریکی ڈرون حملوں اور نیٹو سپلائی کے خلاف دفاع پاکستان کارواں نکالا گیا۔ دفاع پاکستان کارواں میں سربراہ دفاع پاکستان کونسل مولانا سمیع الحق، امیر جماعت الدعوہ حافظ محمد سعید، کنوینر تحریک حرمت رسول امیر حمزہ، جنرل ریٹائرڈ حمید گل، شمس الرحمان معاویہ سمیت کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کارواں کا آغاز نیلا گنبد چوک سے ہوا، جو مسجد شہداء پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماہرین امور خارجہ سردار آصف احمد علی اور محمد مہدی نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی داخلی پالیسی سے مشروط ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن پالیسی بنانا ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی اور امور خارجہ کے ماہر محمد مہدی نے خیالات کا اظہار سینئر صحافی جاوید فاروقی کے ہمراہ پریس کلب میں ایک فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سردار آصف احمد علی نے کہا کہ حکومت 20 APCs بھی لے کر آئے تو ڈرون حملوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ طالبان نے ہمارے 50,000 لوگ مار دیے اور حکومت پھر ان سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ یہ پاکستانیوں کی جانوں کا سودا نہیں تو اور کیا ہے۔ محکمہ جنگلات نے راوی کنارے زرخیز زمین پر تجاوزات کے خاتمے اور پرندوں کی افزائش نسل کے لیے درخت لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ جنگلات نے دریائے راوی کے حوالے سے ایک محکمانہ رپورٹ تیار کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ راوی کنارے سرکاری زرخیز اراضی پر قائم تجاوزات نے دریا کا حسن گہنا دیا ہے۔ اس پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ محکمہ جنگلات دریائے راوی کے کنارے نئے جنگلات لگائے گا۔ محکمہ جنگلات کے مطابق نئے جنگلات کے لگانے سے تجاوزات کے خاتمے سمیت شہر میں پرندوں کی افزائش نسل میں بھی مدد ملے گی۔ پیپلز پارٹی کے 40ویں یوم تاسیس کے حوالے سے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ فیصل ٹاؤن پیپلز سیکریٹریٹ میں ہونے والی کیک کاٹنے کی تقریب میں مرکزی جنرل سیکرٹری پی ایس ایف زہیب بٹ، صدر پی ایس ایف لاہور چودھری نیّر جٹ، خرم فاروق، موسیٰ کھوکر اور سبت الحسن سمیت پی ایس ایف کے دیگر ارکان نے شرکت کی۔ اس موقع پر جیالوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید، بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے حق میں نعرے بازی کی۔ لاہور کی جامعات کے ہونہار طلباء اپنے ہی چانسلر کے نام سے ناواقف نکلے۔ کچھ نے شہباز شریف کا نام لیا تو کچھ لندن پلٹ کہہ کر خاموش ہو گئے، کچھ نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ آپ بھی مسکراتے ہوئے دیکھیے اکمل سومرو کی یہ رپورٹ۔ یونیورسٹیوں میں ابھی بھی ایسے طلباء موجود ہیں جو سیاست کو اچھوت اور اس سے لا تعلق رہنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان طلباء کو اپنے صوبے کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار کا نام تک نہیں معلوم۔ پوچھا گیا کہ گورنر پنجاب کا نام تو بتائیں، تو جواب تھا گورنر پنجاب کا نام آپ کو پتہ ہے؟ گورنر پنجاب کا نہیں۔ گورنر پنجاب کا نام کیا ہے؟ شہباز شریف۔ گورنر پنجاب کا نام؟ گورنر پنجاب شہباز شریف۔ یونیورسٹیز میں ایسے طلباء بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ملکی سیاست سے بے خبر بھی۔ کچھ ایسے طالب علم بھی ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کو گورنر کے عہدے پر فائز سمجھتے ہیں۔ اب اسے طلباء کی کم علمی کہیں یا پھر ملکی سیاست میں عدم دلچسپی۔ گورنر پنجاب کا نام بتاؤ۔ گورنر پنجاب کا کیا نام ہے؟ گورنر پنجاب کا وہ تو نہ یہ بےزتی نہ کرے، یہ نا میرے انٹرویو میں آیا۔ گورنر پنجاب کا نام پتہ ہے آپ کو؟ گورنر پنجاب کا نام گورنر پنجاب کا نام گورنر پنجاب کا نام کیا ہے؟ گورنر پنجاب کا گورنر پنجاب کا نام پتہ ہے آپ کو؟ گورنر پنجاب کا نام پتہ ہے آپ کو؟ گورنر پنجاب کا نام پہلے تو سمانتا سیر تھا،
अब वो मर गया है, अब नहीं पता। आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में आने वाले तलबा के तालीमी मयार को जांचने के तरीक़ाकार को अगर तब्दील नहीं किया जाएगा तो नतीजा यही निकलेगा। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान मुजीबुर रहमान शामी को काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स का सदर डॉक्टर जब्बार खटक को जनरल सेक्रेटरी जबकि डेली सिटी 42 को मेंबर स्टैंडिंग कमेटी मुंतखब कर लिया गया है। CPNE के सालाना इंतखाबात अवारी होटल में मुनक्किद हुए। इलेक्शन से कबल CPNE का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर जमील अतहर, सेक्रेटरी आमिर महमूद, मुजीबुर रहमान शामी, खुशनूद अली खान, इम्तियाज़ आलम, नवीद चौधरी, सैयद मोहम्मद मुनीर जिलानी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन की मंजूरी दी गई और इलेक्शन कमीशन के अरकान में नासिर दाद बलोच, सैयद इंतजार हुसैन रंजानी, अकमल चौहान भी शामिल थे। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल की जाएंगी सिटी स्पोर्ट्स पे। पोलो डी सूफी ने वाइट्रा पेजॉस को शिकस्त देकर शो प्लैनेट पोलो टूर्नामेंट जीत लिया। फाते टीम के बाबर मनु घोड़े से गिरे, फिर उठे और अपनी टीम को चैंपियन बनवा दिया। लाहौर पोलो क्लब में खेले गए शो प्लैनेट पोलो टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमें 6-6 हैंडीकैप के साथ मैदान में उतरी। मैच के आगाज से ही पोलो डी सूफी ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल मार्का 5 के मुकाबले में 7 गोल स्कोर से जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। लाहौर रेस क्लब में 2 कप रेसों समेत मजमूई तौर पर 9 घुड़ दौरों का इनेकाद किया गया। रेस क्लब कोट लखपत में होने वाली पहली रेस में न्यू होप ने पहली, इंटरव्यू दूसरी और बेबी ऑन बोर्ड ने तीसरी पोजीशन समेटी। दूसरी रेस में आफ्ताब शाहीन ने पहले, हार्ट बीट ने दूसरे जबकि वैक्सिन तीसरे नंबर पर रहे। तीसरी रेस में डार्लिंग फाते रही, लकी सोना दूसरे और गलबलो की तीसरे नंबर पर रही। चौथी रेस में वीर ने सबको पीछे छोड़ दिया। एरिया ऑफ स्टार दूसरी और पोन प्रिंस तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप रावलपिंडी के गंजाफर महमूद ने जीत ली। एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदेला ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रॉयल पाम में खेली जाने वाली चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद आसिफ संदेला और उनकी एहलिया समेत दीगर ने शिरकत की। 3 रोज़ा चैंपियनशिप के मेच्योर कैटेगरी के क्रॉस इवेंट में गजनफर महमूद ने पहले, रॉयल पाम के मोहम्मद रहमान दूसरे और मुल्तान के जुल्फ़िकार अली तीसरे नंबर पर रहे। नेट कैटेगरी में सलमान जहांगीर ने पहली, सलीम रजा ने दूसरी और रिजवान असलम ने तीसरी पोजीशन समेटी। सीनियर इमेच्योर्स के क्रॉस इवेंट में कर्नल शफीफ आते रहे जबकि जावेद खान रनर अप और कर्नल आसिफ मेहदी तीसरे नंबर पर रहे। बहार कॉलोनी कोट लखपत में क्रिश्चियन प्रोग्रेसिव मूवमेंट के पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया गया। पार्टी की चेयरपर्सन नाइला जे डियाल का कहना है कि मसीही बरादरी को उनके हुकूक दिलाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मेहमानों को बग्घी पर बिठाकर सेक्रेटेरिएट तक लाया गया। पार्टी की चेयरपर्सन नाइला जे डियाल ने क्रिश्चियन प्रोग्रेसिव मूवमेंट के पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। मलिक यामीन आवान, लाहौर के सदर असलम काली, पंजाब के कोऑर्डिनेटर साइम भट्टी और मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने पार्टी सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। रुकन सूबाई असम्बली किरण डार आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। सालगिरह के मौके पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली रुकन सूबाई असम्बली किरण डार की आज सालगिरह है। MP किरण डार अपनी सालगिरह अहल के साथ मना रही हैं। रुकन सूबाई असम्बली किरण डार की सालगिरह के मौके पर चेयरपर्सन शोबा ख़वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज़ मलिक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत लीगी रहनुमा और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, जबकि नामज़द चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। इस हवाले से देखते हैं मलिक अशरफ खोकर की ये रिपोर्ट। GOR1 चीफ जस्टिस हाउस में मुनक़िदा महफिल मिलाद में चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत आगा रफ़ीक मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर आज़म खान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कासी शरीक हुए। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस मोहम्मद खालिद महमूद, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली, जस्टिस फ़रूख इरफान खान, जस्टिस अली बाखर नजफी, जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू, जस्टिस आतिर महमूद भी मौजूद थे। इनके अलावा जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मामूनुर रशीद शेख,
जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस इबादुर रहमान लोधी, जस्टिस शुजात अली खान ने भी शिरकत की। जस्टिस सदाकत अली खान, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट सरदार अहमद नईम, मारूफ कानूनदान प्रोफेसर हुमायूं, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे समेत ज़िली अदालतों के जजेस और रिटायर्ड जजेस की बड़ी तादाद ने भी महफिल मिलाद में शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इंसाफ की फराहमी के लिए एक तारीख रकम की जिसे पाकिस्तान नहीं भुला पाएगा। हम चीफ साहब को भी, जस्टिस जिलानी साहब को भी हम दुआ में उनके लिए शरीक होंगे, सलाम पेश करेंगे। अल्लाह ताला इनको अपनी रहमतों में रखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंसाफ फराहम करना अल्लाह ताला की खूबियों में से एक खूबी है। तमाम इसके मुद्दा है। तकरीब के आखिर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को यादगारी सेमिनेर भी पेश किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अलविदा करने और नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस्तकबाल के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल एतमाद का मज़हर है। कैमरामैन ताहिर खान के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ कोकर, सिटी 42। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान के रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। नात ख़्वान हज़रात ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। शाहज़ लेबॉर्ट्री GT रोड पर सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान के रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद में मरकूब अहमद हमदानी, मोहम्मद आसिफ चिश्ती समेत दीगर नात ख़्वान हज़रात ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। अर्बन सोल ने प्री समर कलेक्शन 2014 मुतारिफ करा दी। ब्रांड मैनेजर काशिफ ज़रीन का कहना था कि तमाम जूते आलमी मयार के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हॉस्पिटैलिटी इन होटल में मुनक़िदा सालाना तकरीब में डायरेक्टर अर्बन सोल मियाँ मोहम्मद अली और जवाद मुसद्दक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर शाहिद नवाज, मोहम्मद कामरान और इरफान अली समेत कस्टमर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद अली का कहना था कि उन्होंने आलमी मयार को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट में जूतों की प्री समर कलेक्शन को मुतारिफ कराया है। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल सिटी तालीम में। लम्स में होने वाले सालाना कोर्ट केसेस के मुकाबलों में मुसलसल चौथी मरतबा कामयाबी हासिल करने वाले पाकिस्तान लॉ कॉलेज के तलबा के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ की जानिब से गार्डन टाउन के गौसुल आज़म शादी हॉल में मुनक़िदा इस्तकबाली में मारूफ कानूनदान प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ के प्रिंसिपल प्रोफेसर तस्लीम कौसर, डायरेक्टर प्रोग्राम प्रोफेसर बैरिस्टर शबनम इसहाक भी इस्तकबाली में शरीक हुई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर में कानून की तालीम के तालिब इल्मों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में अमेरिकन बार एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से असद जमाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर UCL के डायरेक्टर सैयद असद हुसैन, मोर सोसाइटी के इंचार्ज उमर खान और स्कूल ऑफ लॉ के हेड सारा रियाज समेत तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में अमेरिकन NGO सीट ऑफ पीस के ज़रिए तमाम चौथी इंटरफेथ हारमनी के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। तकरीब में 15 स्कूलों के मुस्लिम तलबा के अलावा ईसाई, हिंदू और सिख मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने भी शिरकत की। FC कॉलेज के रिलीजियस स्टडीज़ के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, आप जान सकेंगे सिटी क्राइम में। गुलबर्ग पुलिस ने घरेलू नाचाकी के बायस बीवी पर तेजाब फेंकने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिरदौस मार्केट में इतवार की सुबह इकबाल नामी शख्स ने घरेलू नाचाकी के बायस अपनी 23 साला बीवी राशिदा पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। गुलबर्ग पुलिस ने राशिदा के कज़न जावेद की मुदियत में इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब सिटी एंटरटेनमेंट। पाबंदी के शिकार क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ को आखिरकार काम मिल गया। फास्ट बॉलर ने भारतीय फिल्म इंडिया में लाहौर साइन कर ली। कहते हैं कि फिल्म में वीना मलिक होगी, उसमें काम नहीं करूंगा। होटल क्राउन प्लाजा में भारतीय राइटर डायरेक्टर अकराम अख्तर के हमरा मोहम्मद आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फिल्म इंडिया में लाहौर के प्रोड्यूसर संजय मासूम और विजेश त्रिपाठी भी मौजूद थे। रोमांस और पाक भारत रिश्तों में प्यार की फिजा पैदा करने के लिए बनाई जाने वाली फिल्म में मोहम्मद आसिफ हीरो का रोल अदा करेंगे। डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म कॉमेडी और लव स्टोरी पर मुश्तमिल है, जिसकी अंदरून लाहौर, दुबई और भारतीय पंजाब में शूटिंग होगी। इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा 12वीं इंटरैक्टिव थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। पहले रोज़ अली ऑडिटोरियम में 3 ड्रामे पेश किए गए। रजा जैदी की रिपोर्ट।
علی آڈیٹوریم میں 12ویں انٹریکٹیو تھیٹر فیسٹیول کے پہلے روز 3 خاکے پیش کیے گئے۔ پولیٹیکل ایجوکیشن پر IRC اور مانڈوا گروپ لاہور نے ڈرامہ پیش کیا جس میں پاکستان کا سیاسی پس منظر دکھایا گیا۔ پولیٹیکل ایجوکیشن کے عنوان سے دکھائے جانے والے ڈرامے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میوزیکل چیئر کے ذریعے سے ہال میں بیٹھے شائقین تک پہنچائی، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا اور تالیوں کے ذریعے داد دی۔ غیر منافع بخش تنظیم انٹریکٹیو ریسورس انسانی حقوق اور عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے اس قسم کے ڈراموں کا انعقاد کرتی ہے اور یہ فیسٹیول مزید 2 روز تک جاری رہے گا، جس میں روزانہ 3 ڈرامے دکھائے جائیں گے۔ کیمرامین مبشر جاوید کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ شہر سے متعلق مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ پڑھیے ڈیلی سٹی 42 اور دیکھتے رہیے سٹی 42 کیونکہ یہ ہے لاہور کا دوسرا نام۔